इसको गॉट इट कर दिए? जी सर हम स्टार्ट कर लेते। So yesterday it was a brief interview. Pity to start with the portion of grammar, right? Just in a minute I'm going to start. Let me open the slides. I hope you remember the sequence that I yesterday showed you. आप लोगों को सीक्वेंस याद होगा कि ग्रामर का पोर्शन होगा, then would be of comprehension and maybe last पे हम vocabulary करेंगे. And as far as the portion of grammar is concerned, what I'm going to discuss today is this. I'm going to start with subject verb agreement, right? Now, before I start, I would like to give you an advice, okay? Those who all preparing for the MPTs, yesterday I showed you all the types of the questions and the nature of the questions, of course, and little bit I discussed the strategy as well. What could be the possible strategy to deal with these type of questions, okay? तो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी. अच्छा, अब what you need to remember is that these rules are going to help you only in a way if you are well versed or at least reasonably aware of the rules of the grammar, at least the tenses, the parts of speech, the voices, the modal verbs. अगर आपने उनको पढ़ा है, उनको स्टडी किया है, तो फिर these rules would be of any advantage to you. They would be helpful in dealing with these MCQs or these type of questions, right? Agar if you have not worked on them, so I would advise that first work on them. Be clear about the tenses, at least be clear about the sentence structure, the parts of speech, the voices. उनको एक दफा समझें, ठीक है जी? अगर आप उनको नहीं समझते and then अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, despite the fact कि जी आपको ये सारे rules पता चल गए हैं, लेकिन if you are not doing anything on your own part, if you're not you regular and disciplined in your practice, तो फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होगा. And from basic to advanced level, all types of questions जो हैं उनकी एक you must go through all with an extensive exercise of about 150 to 200 word sentences, 200 sentences. That would be, I think, sufficient to have an idea of how these questions are and how to spot the error, how to identify the error and then fix the error, right? What could be the possible solution out of the 4 options given there? जब आपको ये 4 options दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला यही है ना कि sometimes similar options, I call them the right answer is camouflaged in such a way कि वो जो उसके साथ ऑप्शन दूसरा होता है वो आपको वो सेंस ही नहीं करने देता कि राइट ऑप्शन कौन सा है. If you are not intentional and not conscious, if you're not paying close attention to that, if you are under stress, if you hurry without understanding the question and then the options, the more effort is to put on to understand the effort को आप यानी सॉरी ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, उसको समझने की कोशिश करना, वहाँ पर तेजी करने की जरूरत नहीं. तो जब तक आप if you don't equip yourself with an extensive amount of practice, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा. प्रैक्टिस तो जरूरी है. खाली रूल्स जो है ना, they are not going to solve your problem. आपको कोई उसका फायदा नहीं. इस चीज को ध्यान में रखें. तो the first topic that I'm going to discuss at the moment is of the subject verb agreement. इसको पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. The slide is visible, I think so. एक दफा मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दें किरण या सना, जो भी मुझे ये नाम नजर आ रहे हैं कि आपको स्लाइड नजर आ रही है. और कुछ चीजें मैं खुद से अलग से बताऊंगा, additional things regarding subject verb agreement. I'll give you all the examples as well. ठीक है. और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, मॉडिफायर के ऊपर जाएंगे. जो आज ग्रामर का पोर्शन हो सकता है उसको कवर करेंगे. आई विल ट्राई के मैक्सिमम चीजें जो आज के सेशन में कवर हो सके. सो सबसे पहले तो ये समझ लो कि द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पोर्शन
ये जो है बेसिकली इट कैन कंपासेस ऑल द टेंसेस, द नॉलेज ऑफ टेंसेस एंड द मॉडल वर्ब्स। तो जो भी आपके टेंसेस के बारे में आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दैट वुड बी असेस्ड हियर। दिस इज द क्वेश्चन जो पूरी तरीके से रिवील करेगा कि आपकी टेंसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग कितनी, टेंसेस को किस हद तक आप जानते हो, वॉइसेस की क्लैरिटी है या नहीं है, मॉडल वर्ब्स की क्लैरिटी है या नहीं। ठीक है जी। बट देयर इज अ ट्रिक, देयर इज अ ट्रिक एंड दैट यू नीड टू कीप दैट ट्रिक इन माइंड। वो ये है कि वंस यू गेट दिस लेक्चर, तो आपको ये सोचना है कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन से टेंसेस ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैन बी सॉल्व, बिकॉज दे मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरी टेंस और एवरी मॉडल वर्ब। राइट, ये आपने इस पूरी को समझने के बाद देखना है कि कौन सी ऐसे टेंसेस हैं, देन कम्स द कंपाउंड स्ट्रक्चर, देन कम्स द कॉम्प्लेक्स एंड देन फाइनली कम्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केस देखना ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर जो है, क्या उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग, आई मीन टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ये देखना होता है। ठीक है जी। अच्छा, इफ यू उसमें होना ये होता है कि सब्जेक्ट जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड द प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। और हर टेंस के अंदर जो फॉर्मूला है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी या कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। ठीक है, इफ इट इज अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड in a sentence, the sentence is correct, which means verb is agreeing with the subject. Mean वो जो verb है या जो helping verb है, according to the singularity or plurality of the subject होना चाहिए. If it is according to that, it means you know that tense very well. इसका मतलब है कि आप वो tense जानते हो. If that helping verb or that verb is not according to that subject, which is either singular or the plural, तो इसका मतलब है कि वो tense जो है वो गलत है, यानी वो वर्ब एग्री नहीं कर रहा है सब्जेक्ट से। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यू कैन नॉट स्पॉट दैट एरर, तो इसका मतलब है आपको भी टेंस का पता नहीं। ठीक है जी। हैविंग सेड दिस, ये these types of the subject, three types of subjects I've written over here, you know, the simple subject, the compound and noun phrase, you know, ये तीन बेसिक टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे। राशिद, this noun, it could be pronoun also. Noun जब आ गया है, simple subject the doer, ये noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकता है। I'm not going into the that detail of the grammar, so I believe कि आपको खुद से पढ़नी है और आपको पढ़ी भी होगी। Here I'm concerned with only the formulas, the rules,
विच वुड हेल्प यू क्रैक दीज क्वेश्चंस। ठीक है जी, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रादर देन कि मैं यहाँ पर टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी ग्रामर की जो टेक्निकलिटीज हैं, दूसरी टेक्निकलिटीज, उस पर नहीं जा रहा। आई एम फोकस्ड ऑन द क्वेश्चंस, राइट? व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन एंड हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो राशिद जो है ये नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा एक प्रोनाउन भी हो सकता है, एंड दिस कुड बी एनीवन। कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर दो आ जाएंगे, दो डूअर्स आ जाएंगे विच आर कैटेगोरिकली क्लियर कि दे आर टू डिफरेंट पीपल, दे आर टू डिफरेंट जेंडर पॉसिबली। ठीक है जी, दो जेंडर्स भी हो सकते हैं, यू नो ऑल दिस थिंग्स। This is a noun phrase, the next person speaking in the conference. So here you are talking, this is the पूरे का पूरा जो phrase है, ये noun phrase है। Obviously the special जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है वो नेक्स्ट पर्सन की बात हो रही है, कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। और चूंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया जा रहा है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, द सब्जेक्ट, आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। एक, नंबर वन, ये सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला ये ज़हन में होना चाहिए। और उसके बाद आपको अगर ये सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, सबसे पहले कि व्हेन यू रीड ए सेंटेंस, जो फर्स्ट स्टेप इज के आइडेंटिफाई करें हु इज द रियल डूअर ऑफ एन एक्शन, हु इज द रियल सब्जेक्ट, which one is acting as a subject, which word or which actually noun is acting as a subject. As I've said, that could be an animal, that could be human being, living being, that could be an idea, that could be a process, it could be anything. आपने ये नजर रखनी कौन सी चीज एक्ट कर रही है, वो सब्जेक्ट है। और एक सेंटेंस के अंदर पॉसिबली देयर कुड बी टू सब्जेक्ट्स, यानी टू डूअर्स, अपैरेंटली दे अपीयर टू बी टू डूअर्स। और आपने देखना है उस सब्जेक्ट में मेन एक्ट जो कर रहा है वो कौन सा डूअर कर रहा है। दैट इज फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको आइडेंटिफाई करना है। वंस इट इज आइडेंटिफाइड, द सेकंड स्टेप इज कि उसमें वो सिंगुलर है या प्लूरल है, it is a singular entity or a plural entity. Once it is clear, तो फिर आपको देखना है कि उस के मुताबिक क्या वर्ब जो है वो उसके साथ मैच कर रहा है, वर्ब इज एग्रीइंग विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, बट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टेंस, उसी टेंस के मुताबिक। बेसिकली वो टेंस के ही मुताबिक आपने देखना है जो टेंस वहां पर दिया गया है। ठीक है जी। So, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, अ गुड स्टूडेंट, इट्स अ सिंपल वन। knows, अगर यहाँ पर नो लिखा होता तो ये गलत होता। knows the value of time. People who know, ये तो बड़ा कैटेगोरिकली नजर आ रहा है ना, बट द सेंटेंसेस दैट आर गिवन देयर इन सेंटेंस करेक्शन और ये ग्रामर को चेक करने के लिए वो इतने सिंपल नहीं दिए जाएंगे। वो किस तरह से दिए जाएंगे, मैं रूल्स की शक्ल में दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। पीपल हु नो दैट द वैल्यू ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। पीपल हु नो, पहले तो ये देखें, पीपल के साथ प्रोनाउन लगा हु नो, राइट? और नो के बाद द वैल्यू ऑफ टाइम। सो दिस इज अबाउट द पीपल जिनकी बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, इट्स अबाउट द पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम आर ऑलवेज सक्सेसफुल, राइट? अगर यहाँ पर इज होता तो ये गलत होता। तो ये तो होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हैविंग सेड दिस, रूल से आपको समझ आएगा कि सेंटेंसेस जो हैं वो ये रूल नंबर 1, पहला रूल समझ लें। पहला रूल समझ लें जी, जब दो सिंगुलर नाउन, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन्स, टू सिंगुलर नाउन्स एंड दीज आर डिफरेंट नाउन्स, जब दो डिफरेंट हो, नजर आ रहा उनका जेंडर डिफरेंट है या वो डिफरेंट लोग हैं, उनको एंड से कनेक्ट करेंगे, दे आर ऑलवेज प्लूरल। पहला रूल। अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि दोनों सब्जेक्ट जो हैं, एक तो है ये राशिद और रहील, फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद, वकार एंड आसिफ, वो तो नजर आ रहा है। माय ब्रदर एंड हिज फ्रेंड, नजर आ रहा है कि दो डिफरेंट हैं। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें दोनों जो है उसमें आइडेंटिफाई करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, कि वेदर दीज आर टू पीपल और इट्स द सेम पर्सन। जैसे कि ये रूल नंबर 2 में है, द कैप्टन एंड कोच। अब ये जो दो ऐसे नाउन्स हैं जिनमें इतना आसान नहीं है, अगर आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट जिन में रखा हुआ कि जब भी एंड आएगा तो वो दो लोग होंगे, तो आप इस पे गलती कर जाओ। अगर आपने सिर्फ यही रखा हुआ, सिर्फ फर्स्ट रूल को जिन में रख के
आपने ये ज़हन में बैठा लिया कि जब भी दो नाउन्स के दरमियान एंड आता है तो वो प्लूरल होता है, तो आप इस वाले में जहां पर द कैप्टन एंड कोच लिखा हुआ है इस पे गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन्स तो हैं बट दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन। द सेम पर्सन कैसे पता चलेगा? द आर्टिकल दी, ये जो दी आर्टिकल है दी कैप्टन, द कैप्टन, ये सिर्फ एक के साथ नाउन के साथ जुड़ा है, द फर्स्ट सब्जेक्ट द मेन जो है उसके साथ जुड़ा है, दूसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ, कोच के साथ नहीं है। सो दिस इज वन पर्सन, दिस रेफर्स टू द सेम पर्सन। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेट, ये सिंगुलर गिना जाएगा। हाँ, अगर कैप्टन और कोच दोनों के साथ अलग अलग, द कैप्टन एंड कोच दोनों के साथ अलग अलग भी प्लेस किया जाता, राइट, so that could have been two people, it would be referring to two different persons, एक पर्सन नहीं है, दो लोगों को रेफर कर रहा है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, अगर एग्जांपल और दे दूं, ब्रेड एंड बटर इट्स वन नाउ, इज नॉट इजी टू अर्न इन दिस एरा ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इन दोनों के साथ ऐसे नाउन्स जिनमें जेंडर क्लियर नहीं है, जिनमें दो लोग डेफिनेटली कैटेगोरिकली क्लियर नहीं है, वहां पर अगर एक के साथ आर्टिकल लगा है जो फर्स्ट वन के साथ, तो फिर इट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। लेकिन अगर दोनों के साथ लगा है आर्टिकल, या आप ये कह लो कि अगर पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगे हैं, जैसे कि ये नोट कर लें, बेशक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं माय, योर, हिज, हर और देयर, ठीक है, तो समझ लो कि वो दो डिफरेंट नाउन्स हैं। मिसाल के तौर पर माई अंकल एंड माई डॉक्टर, अब ये दो लोग हैं, माई अंकल एंड माई डॉक्टर विजिट मी वीकली, दे आर कंसिडर्ड टू बी प्लूरल बिकॉज दे आर टू डिफरेंट पीपल। जैसे ऊपर द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम है, तो ये दो हो जाएंगे, राइट। मुझे जरा बताते जरा सुना, या किरण आप में से कोई एक, क्योंकि मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ ना आपको, सिर्फ जो मेरे साथ जूम पे, आप मुझे जरा रिस्पॉन्ड करते जाना। समझ आ गई यहाँ तक? इतनी एक्सप्लेनेशन ठीक है, क्लियर है? दूसरी एग्जांपल नोट कर लिया आपने जो मैंने बोली है, माय अंकल एंड माय डॉक्टर, ओके, ये दीज आर टू, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल द डॉक्टर, ठीक है जी, एंड द असिस्टेंट, द डॉक्टर एंड द असिस्टेंट, यू नो, तो ये दो लोग होंगे, द डॉक्टर एंड द असिस्टेंट हैव जस्ट अराइव्ड इन द हॉस्पिटल, ये दो होंगे, राइट। ये दो बेसिक रूल्स हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स अगर आप इस वक्त समझ लेते हो, और आपको जो मैंने ट्रिक बताना है अभी बेसिक टेंसेस के बारे में, वो ज़हन में रखते हो, तो आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई भी क्वेश्चन होगा, दैट वुड बी इजी टू सॉल्व। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है जी? सबसे पहले तो ये देख लें, व्हेन सेंटेंस बिगिंस विद हियर और देयर। अब हियर और देयर के बाद क्या, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर इज वॉज आएगा, वर आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, या हैज आएगा, हैव आएगा, इसकी बात नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हियर और देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा, ये कौन सी चीज डिटरमिन करती है? व्हाट डिटरमिन्स के वेदर इट इज हियर, जहां पर जो भी ये लग रहा है वर्ब, वो सिंगुलर फॉर्म में लगेगा या वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। तो रिमेंबर दैट कि ये जो इसके बाद आप लग रहे हो, द सब्जेक्ट विच फॉलोज, जो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, जो दैट फॉलोज, ये द लिस्ट या मेनी थिंग्स, ये डिसाइड करेगा। इफ दिस इज सिंगुलर, तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब प्लेस कर, जो यहाँ पर आप इंटेंडेड लगाने जा रहे हो, या अगर आपको लगता मिलता है कि अगर वो प्लूरल है लगा हुआ, यहाँ पर मिलता है सेंटेंस ऐसा दिया जाता है, यहाँ पर वो प्लूरल है, तो ये प्लूरल होना चाहिए। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देयर इज मेनी थिंग्स है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर जो बाद में एंड पर आ रहा है सब्जेक्ट, वो काउंट नहीं होगा जो उसके अंदर चीजें, मतलब मेनी थिंग्स ऑन द लिस्ट, दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। दिस वन, द सब्जेक्ट विच इमीडिएटली फॉलोज, जो इमीडिएटली उसके बाद आएगा, दैट इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पर जो इज या आर या वॉज या वर, राइट, जो भी आएगा वर्ब, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि आप जो सब्जेक्ट लगाने जा रहे हो विच फॉलोज इमीडिएटली, वो कौन सा है। वो अगर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल कंसिडर होगा। Having said this, the next one, these are the 3 rules. The fourth, ये either और neither और ये जो लफ्ज हैं,
जिनको हम कहते हैं आइदर और नाइदर नॉर, यहां पर एक चीज समझ लो, यानी डबल कंजक्शन जब होंगे, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन दे आर डबल कंजक्शंस, तो जो सेकंड कंजंक्शन है और नॉर, या जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर पहले एक एग्जांपल दे दूं. आई गिव earlier this example too, I think so, in my class, one of my classes, probably not only the principal but also the teachers, right? अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दी थी, participating in the meeting, for example. Now remember that कि जब भी इस किस्म के डबल कंजंक्शन यूज होंगे तो ये जो सेकंड कंजंक्शन है, that diverts your attention. You look at this one, ये सब्जेक्ट कंसिडर नहीं होगा, but also is diverting your attention to the subject that follows now, which is of course या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. अब यहां पर वो प्लूरल है, इसको देखना होता है. यानी अगर यहाँ पे आइदर और या नाइदर नॉर होगा, तब भी और या नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट को आपने कंसिडर करना, वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है. अकॉर्डिंगली आप यहाँ से जो भी उसका रेलेवेंट वर्ब होगा वो सिलेक्ट करेंगे, या उसका जो गलत होगा उसको ठीक करेंगे, जो राइट ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करेंगे. ठीक है जी. तो दीज आर द 4 रूल्स. द 5th रूल इज इसी तरह से, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है, जैसे देखो इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये मत देखें कि ये अमजद या वाइफ लिखा हुआ, ये 2 सब्जेक्ट हैं. आपने आइडेंटिफाई करना होगा रियल सब्जेक्ट कौन सा. ये मैं इसलिए फॉर्मूला मैंने पहले बताया कि रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई व्हिच इज द मेन डूअर, द रियल डूअर ऑफ एन एक्शन, व्हिच इज द मेन डूअर और द रियल डूअर ऑफ एन एक्शन. आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस में ये आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट्स को खाली नहीं देखना, आइडेंटिफाई करना है व्हिच वन इज द रियल वन, और फिर उसके बाद डिटरमाइन करना है सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से देखना. सो अब ये रूल नंबर 3 ये कहता है, अब देखो इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, एक तो चीज ये है, इस पे 2 बातें ध्यान में रखनी. एक तो ये जो कॉमर्स के अंदर आ रही है, दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मे बी नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट नेसेसरी, इसको कभी भी कंसिडर नहीं करना, पहली बात कॉमर्स के अंदर. दूसरी चीज, ये जो दूसरे कंप्लीट बाय अलोंग विद, ये इनको कहते हैं कनेक्टिव्स, टुगेदर विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, ये सब कनेक्टिव्स कहलाते हैं. ये जब आएंगे तो भी आपने इसके साथ वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना, इसके पहले वाले को देखना. अगर पहले वाला सिंगुलर है, जैसे कि इस केस में हम सिंगुलर है, आप सिंगुलर लगाएंगे हर सिंगुलर. अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल है कंसिडर होगा. ये नहीं होगा कि जो बीच वाले सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं या इन कनेक्टिव्स के साथ आ रहे हैं उनको आप कंसिडर करेंगे. दे आर नॉट कंसिडर्ड. ओनली द फर्स्ट वन, FSR रूल जिसे कहते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट रूल. फर्स्ट सब्जेक्ट रूल अप्लाइज हियर, किस केस में, व्हेन समथिंग इज विद इन द कॉमा, ठीक है, along with these connectives, उनको कंसिडर नहीं करना. यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट रूल आएगा. द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 6. अच्छा, इस रूल को समझने के लिए मैं अक्सर बार बार अपनी क्लास में ये कहता होता हूँ कि इस रूल के 2 चीजों की तरफ गौर करना है. यू हैव टू पे अटेंशन टू 2 थिंग्स. देखो ये जो लिखा हुआ ना, वन ऑफ द मेंबर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये तो ठीक लिख ही लेंगे कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, बिकॉज वन लिखा हुआ है, मोस्टली इसको समझ लेते हैं. कुछ लोग होता है कि जो नहीं समझते, अगर लिखा हुआ आएगा ना यहाँ पर तो वो इसको कंसिडर करते हैं. वन ऑफ द मेंबर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, वन ऑफ द ऑफिसर्स, इसको वो कंसिडर करके गलती करते हैं. कुछ लोग होते हैं, बट मोस्टली लोग जो ये ठीक कर लेते हैं, वन के साथ इज लगा देते हैं. लेकिन जो मैं चीज जिसकी तरफ आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, while when you write something, for example, you yourself, you're writing, for example, everybody commits this mistake. Most of the people do commit this mistake. Even we, when speak, any oral speech ke andar, you may call it a slip of the tongue. This happens, most of the time कि हम लोग भी बोल जाते हैं बाज़ औक़ात ये one of the members जो है ना, इसको लोग सिंगुलर बोल जाते हैं. one of the member, one of the student, one of the teacher.
आज से आपने याद रखना है कि ये हमेशा प्लूरल होगा, बिकॉज out of many one is being talked about. Out of many one is being talked about. This is obvious. But actually लोग नहीं इस तरफ तवज्जो देते और ये प्लूरल की जगह सिंगुलर प्लेस कर देते हैं. तो एक तो ये चीजें रखनी है. और जब सेंटेंस होगा तो डेफिनेटली वन के साथ इज आएगा. इसको आपने कंसिडर करना है, इस सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं करना. The seventh rule says कि indefinite जो pronouns होते हैं, when we talk about the indefinite pronouns, ठीक है जी. इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर तीन चीजों को आपके ज़हन में रखना और तीन डिफरेंट रूल्स मैं बताने जा रहा हूं. ठीक है. वो ये है कि वन इज कि कुछ ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, दे आर ऑलवेज प्लूरल. ये सेवन रूल इज अबाउट देम. These are those indefinite pronouns that are considered always plurals. Right? जब ये नजर आएंगे तो आपने उनको प्लूरल करना है. There is another rule which says that these are the indefinite pronouns which are usually, considered to be, which are plural. They seem to be plural, but they possibly could be singular or plural depending on the subject that we are going to use after them. And if that is a countable noun, जैसे कि ये है students, if this is countable noun, तो हम इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे. फिर द अनकाउंटेबल नाउन वी कॉल इट द सिंगुलर वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग नहीं समझते. इसको आपने ज़हन में रखना है. यू गॉट माय पॉइंट जी. ये जरा थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड कर देना सना, और जो भी आप यहाँ पर हो. यू गॉट इट. अच्छा, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन वो हैं विच आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सिंगुलर. ये सिंगुलर ही गिने जाएं. दे आर इंडिकेटिंग द सिंगुलैरिटी. अच्छा, पिछले वाले में वो प्लूरलिटी को इंडिकेट करते हैं, बट दे कुड बी सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कि सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, काउंटेबल लग रहा है या अनकाउंटेबल लग रहा है. बट ये जो है दे ऑलवेज सिंगुलर. इनको ज़हन में रखें, ये ऑलवेज सिंगुलर. और इसी के रिलेटेड ये जो नेक्स्ट आएगा, यहां पर भी ये दे आर ऑलवेज सिंगुलर. नेवर कंसिडर कि जी मैन एंड वुमेन आ रहा है, बट एवरी इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इट इज पॉइंटिंग टू वन. सो मैन एंड वुमेन को नहीं देखना, आपने एवरी को देखना. एवरी चूंकि हैज बीन यूज्ड हियर, क्योंकि एवरी का वर्ड यूज हो गया है. ठीक है. ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कंसिडर होगा एवरी वाला, और वो सिंगुलर गिना जाएगा. सो ये तीन रूल 7, 8, 9 और ऑब्वियसली 10 इसके साथ एडिशनल वन, इसको मिला के आपने पढ़ना है, समझना है. गॉट इट. अच्छा, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑल द एक्सप्रेशंस, व्हेन अमाउंट, मनी, वेट, डिस्टेंस, व्हाटसोएवर, पीरियड है, कोई भी है, और ये एज ए यूनिट होंगे, एज ए यूनिट, एज एन एक्सप्रेशन जब आप बताए जाते हैं, वो सिंगुलर गिने जाएंगे एज ए यूनिट या सिंगुलर. अच्छा, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एक्सप्लेन, rather than telling or explaining things in English, this in English, I love to use an Urdu sentence. I most of the time use this Urdu sentence in my class, which is, in my view, I've seen that student easily grasp this idea. When I tell them this in Urdu, तो ये ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है. और वही मैं जुमला यहाँ पे बोलूंगा. देखो, उर्दू में हम बोलते हैं ना, 10 साल का अरसा. 10 साल का अरसा. This is giving you the sense of singularity. अगर 10 साल का अरसा, अरसे का लफ्ज नहीं लगाएंगे, अरसा is showing it to be a unit, an expression of time, right? This is अरसा word is an expression of time, right? अगर हम अरसे का वक्त नहीं लगाते तो हम लिखते हैं 10 साल हो गए. We use plural in plural form. 10 साल हो गए, because we are counting 10 years. यहां पर हम 10 years को काउंट कर रहे हैं. यहां पर वहां जब अरसे का लफ्ज यूज कर रहे हैं तो 10 साल एक एज ए यूनिट के तौर पर ले रहे हैं, एज एन एक्सप्रेशन ले रहे हैं. 10 साल का अरसा हो गया. इसी तरह से 10 लाख रुपए दिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द मनी. एवरी सिंगल पेनी, एवरी सिंगल रुपी और एवरी सिंगल नोट, उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन जब आप कहते हैं
उसको एज एन एक्सप्रेशन देते हो या यूनिट के तौर पर देते हो, 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है. रकम is describing the amount of 10 lakh as a unit, as an amount, as an expression. वही चीज में रखते हुए देखो, 2 years is a long time because you are talking about long time. $1 million was given back to him. You got my point? $50,000 was a handsome amount. Was a handsome amount. 500 kg of sugar was sold. 500 kg of sugar. ये क्या यूज हो रहा है? ये एज एन एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, यूनिट के तौर पर यूज हो रहा है. Was sold for 5,000 rupees. So see, this is very important. As an expression जब आएंगे या as a unit आएंगे, हाँ जी, yes, of course, वो भी है, बिल्कुल. लेकिन जब उनकी कोई परसेंटेज या उनका पार्ट एज ए प्लूरल मीनिंग देता हुआ आए, ठीक है जी, when there is a fraction for example or percentage of any noun, और वो यूज हो वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन, और वो नाउन सिंगुलर गिना जाएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, और उसके साथ अगर वो नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल आएगा. मिसाल के तौर पर 50%, ये गौर से सुनना, यहां पर वो दोनों एक तरह की एग्जांपल दी, डिफरेंट एग्जांपल नहीं दी, मैं दोनों एग्जांपल दे दूंगा. एक तो ये होगा ना, व्हेन द परसेंटेज ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन्ड विद प्लूरल मीनिंग, अगर वो प्लूरल मीनिंग के साथ आएगा वो प्लूरल होगा, अगर वो सिंगुलर मीनिंग के साथ आएगा तो सिंगुलर होगा. तो यहाँ प्लूरल की तो एग्जांपल दी, सिंगुलर की भी मैं दे देता हूँ. पहले तो ये प्लूरल की देख लो, ये आपको नजर आ रही है. आई डोंट नीड टू रिपीट दिस बिकॉज यू कैन सी दैट. आई एम गोइंग टू टेल यू द वन व्हिच इज विद द सिंगुलर मीनिंग. मिसाल के तौर पर 50% ऑफ द बुक हैज बीन रेड बाय मी. अब देखो ना, आप 50% की तरफ एज ए यूनिट इशारा कर रहे हो, यानी इस बुक का जो 50% है वो हिस्सा मैंने पढ़ लिया. देखो उर्दू में भी 50% हिस्सा मैंने पढ़ लिया है. 50% ऑफ द बुक हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन रेड बाय मी. वो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है 50% को. अगर वो प्लूरल मीनिंग दे रहा होगा तो वो प्लूरल आएगा. अगर कोई चीज प्लूरल में आएगी, प्लूरल में कैसे कि जैसे 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन. अब ये प्लूरल मीनिंग दे रहा है, ठीक है जी. द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 13. दिस वर्ड, ये जो ए नंबर ऑफ और ये दी नंबर ऑफ, इसकी अक्सर लोगों को हो जाती है कंफ्यूजन. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक. तो ये जरा समझ लो कि ए नंबर ऑफ और डी नंबर ऑफ क्या होगा. ए नंबर ऑफ मीन्स सम काउंटेबल नाउन्स. नंबर ऑफ का मतलब यह है कि सम काउंटेबल नाउन आ रहा है, और दी नंबर ऑफ का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है. दी नंबर ऑफ का मतलब यह है सम अनकाउंटेबल नाउन, और ए नंबर ऑफ मीन्स कि सम काउंटेबल आएगा. ये अपने ज़हन में मीनिंग इसका बैठा लो, राइट. सो इफ देयर इज ए नंबर ऑफ लिखा हो तो आपने हमेशा उसको प्लूरल लेना है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि सम काउंटेबल नाउन. और दी नंबर ऑफ का मतलब है ये, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें स्पेसिफिक की बात की जा रही है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर गिना जाएगा दी नंबर ऑफ के साथ. यू गॉट इट. मिसाल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड द हॉल इज नॉट अलाउड टू एंटर. द नंबर ऑफ सोल्जर्स एट द बॉर्डर हैज बीन डिक्रीज्ड. ठीक है, ये सिंगुलर के लिए गिना जाएगा. You got it. The next is the rule number 14. ये जो fractions हैं, all these fractions, 1/2, 1/3, whatever the fraction is, remember that after that जो object आ रहा है, जो object use हो रहा है, one of the cake, जो भी इधर use होगा, वो देखना वो क्या है, वो singular है या plural. Since this is singular, तो आप इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, उसके हिसाब से वर्ब को एग्री करवाएंगे, यानी वर्ब की जो फॉर्म होगी उसको, अगर वो गलत है तो उसको ठीक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है वन ऑफ द केक और ये टेस्ट लिखा है तो आप इसको टेस्ट करो, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर. केक इज सिंगुलर. स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो ये प्लूरल, अगर यहाँ पर उसके साथ इज लिखा हुआ है या वॉज लिखा हुआ है तो उसको ठीक करें, वर्क करें, बिकॉज यहाँ पर प्लूरल है. सो इस ऑब्जेक्ट को देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल. अकॉर्डिंगली आपने उसके वर्ब को देखना है कि वो वर्ब ठीक लगा या गलत लगा हुआ है. रूल नंबर 15.
अब ये दिस इज ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी बहुत से लोग गलती करते हैं। ये जो नाउन्स आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, जिमनास्टिक्स, राइट, दीज nouns, right? They may be singular, obviously the plural. If they refer to something as an organized activity, one singular activity, organized, मिलके एक मिलके करेंगे ना, यूनिट बन गया, and this shows an organized activity, it is singular, ठीक है। लेकिन if any of these nouns is referring to every single individual within the group, आप अगर उसके इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है तो उसको आप प्लूरल कंसिडर करेंगे। लेट मी शो यू द एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल, द जिमनास्टिक, व्हेन इट इज टॉक्ड अबाउट एज अ गेम, जिमनास्टिक एज अ सिंगुलर एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के तौर पर लिया जा रहा है, इज वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स, तो ये सिंगुलर होगा। मगर द जिमनास्टिक जब लगाया आपने उसको, इट मींस कि यू आर आइडेंटिफाइंग एवरी सिंगल स्टंट और एक्टिविटी दैट इज बीइंग प्लेड देयर, तो फिर आप उसको सिंगुलर की तरफ रेफर कर रहे हैं ना, तो वो सिंगुलर गिना जाएगा, प्लूरल गिना जाएगा, क्योंकि आप सबको काउंट कर रहे हैं। द जिमनास्टिक शोन इन द फील्ड टुडे वर आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक और आ रहा है आगे, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। और जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, व्हेन दे बिकम द सब्जेक्ट, व्हेन दे बिकम यू नो एज नाउन, व्हेन दे बिकम सब्जेक्ट और एज नाउन, राइट, जितने भी एडजेक्टिव उनके साथ एक तो आर्टिकल दी लगेगा, और दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्लूरल। द रिच means all, every rich, सब लोग काउंट हो रहे हैं। The poor means सबके सब poor, the efficient सबके सब, तो इसको हम प्लूरल के तौर पर कंसिडर करेंगे। रिच आर टू बी टैक्स, the poor are to be had, the efficient are the need of this country, ठीक है। ये चीज थी जिसके बारे में मैं कह रहा था अभी, दैट इज, इसको बिल्कुल इसके साथ मिला के देखें, रूल नंबर 15 और रूल नंबर 17 को मिला के देखें, 15 और 17 को मिला के आपको देखना है। कलेक्टिव नाउन्स, ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, टीम, कंपनी, ग्रुप, ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, अगेन द फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला अप्लाइज। यानी अगर वो कलेक्टिवली एक सिंगुलर के तौर पर शो कर रहे हैं, कलेक्टिव एक्टिविटी या कलेक्टिवली सिंगुलर को शो कर रहे हैं, द पुलिस इन द होल डिपार्टमेंट, द पुलिस इज आफ्टर द कल्प्रिट, ठीक है जी। The committee are of the different opinion, means the individual, every single individual is being counted here, right? तो जो उसको देखना है, ये आपने उसको सेंस ये करना है कि वो जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वो जो नाउन यूज हो रहा है, कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है, वो एज ए कलेक्टिवली सिंगुलर एक्टिविटी के तौर पर या ग्रुप के तौर पर यूज हो रहा है, या वो उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, एक एवरी इंडिविजुअल इज बीइंग फोकस्ड, उसकी बात हो रही है, उसको ज़हन में रख के किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये कमेटी का जो लफ्ज़ है, द कमेटी, अगर इसको मैं सिंगुलर दूंगा तो ये प्लूरल भी होगा सिंगुलर। द कमेटी हैव फेल्ड एग्रीइंग ऑन ए सिंगल एजेंडा। अब कमेटी हैव फेल्ड और एग्रीइंग का लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है, कॉन्टेक्चुअल में क्लू जो है वो एग्रीइंग है, इसका मतलब एवरी मेंबर की बात हो रही है। द कमेटी हैव फेल्ड एग्रीइंग ऑन ए सिंगल एजेंडा, ठीक है जी। एग्री लफ्ज़ जो है वो इज इंडिकेटिंग दैट द कमेटी इज डिस्कसिंग द इशू ऑफ सेफ्टी, ठीक है, the issue of the safety, so that is a singular one because एक singular activity के तौर, collectively singular के तौर पर यूज हो रहा है कि पूरी की पूरी कमेटी एक ही बात पर बात कर रही है। जब एग्री का लफ्ज़ आया तो उसका मतलब है कि सबके डिफरेंट ओपिनियन थे। रूल नंबर 18, आई कॉल दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेटिव एक्ट। एक्सप्लेटिव एक्ट का मतलब ये है, यहाँ पर अब इस चीज को समझो कि देखो, बेसिकली व्हाई इट इज हियर, इट इज टू इंडिकेट टू यू नो the subject that we are going to use, ठीक है जी। तो आपने इट को सिंगुलर ही कंसिडर करना है, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट को आपने नहीं देखना, यानी ये नहीं देखना, आपने इट को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर लेना, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वो आपने नहीं देखना, चाहे उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ रहा है, आपने उसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इट को कंसिडर करना है। इफ a sentence begins with expletive it, the verb is always singular, आपने इट को कंसिडर करना है, जिसकी तरफ रेफर कर रहा है उसको नहीं देखना। It is the parents, आपने उसको नहीं देखना, that is not considered, only it, because it is indicating, it is used as a doer, ये यूज हो रहा है एज ए डूअर के तौर पर। अगेन इस केस में भी, ठीक है जी, इस केस के अंदर भी जैसे मैंने फ्रैक्शन के अंदर बताया था, इस केस में भी ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा। ऑल ऑफ द चिकन या ऑल ऑफ द चिकन, जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर, ऑल इज नॉट द सब्जेक्ट,
all is not here playing the role of a subject. ठीक है, all जिसको रेफर कर रहा है, जिसको रेफर कर रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? यू नो, इफ इट इज सिंगुलर ऑब्जेक्ट, आप उसको देखेंगे, ऑल ऑफ द चिकन इज फिनिश्ड, ऑल ऑफ द चिकन्स आर कुक्ड. $19 हो गया जी. This is 20. Every, you know, title, whether of a person, you know, book, movie, film, or any other title, they're always singular, treated as a singular. और जब एक सेंटेंस के अंदर आप एक टाइटल लिखते हो, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में आना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, उसका जो भी उस पर 2 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स हैं, जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, वो सब के सब उनका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा. राइट? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये पूरा एक नाउन, सिंगुलर नाउन के तौर पर बिहेव कर रहा है. इट इज बिहेविंग एज ए सिंगुलर नाउन. जो भी टाइटल होते हैं ना, वो सिंगुलर नाउन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं. बेशक उनके अंदर जो यूज वर्ड्स हो रहे हैं, जो नाउन यूज हो रहे हैं, वो प्लूरल सेंस दे रहे हैं, but that would not be considered in totality. The whole as a singular noun would be considered, और उसको singular ही लेंगे. So great expectations is a must spread noun because you are talking about the noun. ठीक है, you are presenting that these 2 words as a singular noun. अच्छा, 2-3 यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हुए, वो और रूल्स लिख रहे हैं. If you have the pen and paper, I would like you to write the 1 or 2 rules, 2 more rules. क्या आपके पास है जी? सना या किरण, जो नाम मुझे नजर आ रहे हैं, अगर आप मुझे यस या नो कर दें तो मैं आपको लिखवा देता हूँ. मुझे आपकी तरफ से अगर सिग्नल आ जाए तो. ओके. एक दफा फिर करें, मुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. हाँ ठीक है, थैंक यू, आई हैव सीन दैट. अच्छा, लिखें जी एक रूल जो मैंने यहाँ पर शायद इसमें मैंने लिखा हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट. I'm going to dictate. When gerund infinitive, मैं एग्जाम्पल तीनों की, चारों की दूंगा, जो भी मैं बता रहा हूं. When gerund, infinitive, phrase and clause. When gerund, infinitive, phrase and clause जब ये एज ए फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करेंगे, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ या लिखूंगा. When they behave like a subject, when they function like a subject, when they behave like a subject, whatever you call, ठीक है, they use singular verb. मिसाल के तौर पर टीचिंग, ये देखो, टीचिंग ये जेरेंट है. टीचिंग क्या है? जेरेंट क्या होगा आपको पता ही है सबको, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं. When the fourth form, इसको सिंपल अल्फाज में कहेंगे, the fourth form of verb behaves like a noun, is a, कहते हो ना, noble profession. ठीक है, तो ये gerund is the form of a noun. यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ये टीचिंग जो है ऐसे gerund यूज हुआ है, is a noble profession. इन्फिनिटिव भी क्या होगा कि व्हेन प्रीपोजिशन टू के साथ आप वर्ब लगाते हो, इट बिहेव्स लाइक ए नाउन. जैसे कि टू पेंट द वॉल्स इज माय हॉबी. राइट? अब ये जो टू पेंट है, आई इंडिकेट हियर, ये इन्फिनिटिव है बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक ए नाउन. राइट? अब ये देखो, वो जो मैंने नाउन फ्रेज बताया था, वैसे स्ट्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलोंग द लेक. अब जरा गौर से देखना, पहले यहां तक रुक लो. ये पूरे का पूरा जो यूज हो रहा है, स्ट्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलोंग द लेक, दिस इज फ्रेज. I mean, noun phrase, obviously, it's a noun phrase. राइट? जो मैंने अभी बताया था, नाउन फ्रेज. राइट? ये पूरे का पूरा.
तो जब नाउन फ्रेज है तो सिंगुलर है, बिकॉज एक्चुअली अगर आप इस पूरे फ्रेज के ऊपर गौर करो, स्ट्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलोंग द लेक, अगर इस पूरे पर गौर करो तो द रियल डूअर इज स्ट्रॉलिंग, एक्ट ऑफ स्ट्रॉलिंग, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉलिंग, द एक्ट ऑफ स्ट्रॉलिंग। ये तो वो स्ट्रॉल कहाँ हो रहा है उसके बारे में बताई जा रही है ना, राइट। लेकिन जो लोग इंग्लिश को सही नहीं पढ़ते, समझते नहीं है, वो इसके अंदर पहली तो बात है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये सब्जेक्ट के तौर पर या डूअर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। एंड सेकेंडली दे माइट कंफ्यूज देम विद दीज वर्ड्स आल्सो, हो सकता है इसके साथ कंफ्यूज कर दे। तो इसको सेंस, इसलिए मैंने पहला स्टेप बताया था, आपको पता है ना, 4 स्टेप्स बताए हैं कि आपको रीड एंड सेंस द सेंटेंस। सबसे पहली चीज है रीड एंड सेंस द सेंटेंस। मैं बताता हूं सेंस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब यहां पर डिस्टर्बेंस, 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 where the sentence doesn't seem logical, महसूस हो, ठीक है, seems to have a flaw, ठीक है, a gap whatsoever, आप उसको क्या, पहला काम स्टेप दूसरा ये होता है। थर्ड स्टेप इज spot that error. Then comes the fourth step, that is fix that error. What happens is that most of the time students focus more on fixing the error without even sensing the exact error. Spot, मैं इधर लिख देता हूँ, spot the exact error. Exact का लफ्ज मैं इजाफी तौर पर इंटेंशनली लिख रहा हूँ क्योंकि वो सही एरर को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो गलत चीज को एरर एज एन एरर आइडेंटिफाई कर लेते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द एग्जैक्ट एरर क्या है, सही एरर क्या है, द राइट एरर क्या है, दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर यू फिक्स दैट एरर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस वन, सो नेवर डू दिस। सो अगर इसको रीड करो, स्ट्रॉलिंग ऑन द ट्रैक, ये तो एक्ट है ना, नजर आ रहा है कि दिस इज अ प्रोसेस, इट्स एन एक्ट, लेकिन ये तो वो जगह है जहां पर एक्ट हो रहा है। इट्स नॉट टू बी काउंटेड। यू सी, आई एम नॉट यूजिंग टिपिकल ग्रामेटिकल jargons or terminologies. I'm refraining myself from using these things because in my class I prefer to use the word grammar for the sake of communication rather than grammar for the sake of grammar, because most of the students they cram rules of the grammar, they know well the terms and the jargons of the grammar, but when it comes to the matter of the application, their mind is not conditioned to think, spontaneous thoughts in English. Obviously, when your mind is not conditioned to think spontaneous thought in English, how can it produce or utter or make sentences, spontaneous sentences, correct sentences actually in English? This is not possible. Your mind first of all thinks in Urdu and then tries to translate, and then translate. It is not a two-step process. It is rather it may have multiple steps. For example, you think in Urdu first of all, and then you try to think of the formula, and then your mind may divert your attention towards कि जी उस फॉर्मूले के अंदर जो स्पेसिफिक्स हैं उनकी तरफ चले जाएं। For example, subject helping verb and object है, पहले वो it takes you towards subject and then the definition of the subject and the kinds of the subject and then verb and the kind of the verb, kinds of verb. Likewise, then verb, object, and then the definition of object. So your mind keeps wandering rather than having a unified approach and a focused approach towards the idea that is going to be that is going to be uttered, that you intend to form in your head. ठीक है जी, वो ऐसे नहीं होता, वो आदत बनी हुई है। तो इसलिए मैं उसको जरा अवॉइड करता हूँ। मेरा मेथड ये है कि ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर तो आपने बहुत पढ़ी, सब लोग पढ़ के आते हैं। मैं जितने लोग आते हैं स्टूडेंट्स, आई हैव सीन देम, सबको टेंस, किसको नहीं आते जी टेंसेस? सबको टेंसेस आते हैं। क्यों फिर गलती होती है टेंसेस की? किसको नाउन की डेफिनेशन आती है, किसको वर्ब की डेफिनेशन आती है, किसको नहीं पता एडजेक्टिव क्या होता है, किसको नहीं पता मॉडिफायर क्या होता है? सबको पता है। लेकिन why are you unable to identify the right error? Why you are unable to think spontaneous thoughts in English?
and then simultaneously express all your ideas and thoughts in English onto the paper. What's the reason of this? The reason is very simple. You're more inclined towards the technicalities of the grammar rather than the conceptual understanding of the grammar. इसलिए आप सेंस नहीं करते, फॉर्मूले याद करते हैं, फॉर्मूले बस को आपको कंफ्यूज कर देते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि आप इस पूरे गोल को स्ट्रोलिंग ऑन द ट्रैक, असल वर्ड स्ट्रोलिंग आपको पता चलेगा, और ये सिंगुलर एक्ट है, रादर देन कि मैं यही वर्ड यूज करूं नाउन फ्रेज. यस, इट इज अ नाउन फ्रेज, नो डाउट अबाउट इट. ये पूरा फ्रेज है और नाउन फ्रेज है क्योंकि ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है. अच्छा, नाउन के लिए भी मैंने बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर किया था स्टूडेंट्स को. मैंने कहा जी नाउन द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर ये कहती है द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यू नो, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. ठीक है जी. और फिर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं. एडवाइस, एंड एडवाइस तो पूछा जाता है कौन सा इसमें नाउन है कौन सा वर्ब है. मोस्टली तो इसमें भी गलत करते हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज समबडी सेज कि यस सर ADVICE इज अ नाउन. ओके जी, नाउन तो है लेकिन ये तो नाम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आपके ज़हन में क्या आएगा? सर नाउन की देखिए किसमें होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन. बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर. कंसेप्चुअल कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है आपके ज़हन में कि आप नाउन को इस डेफिनेशन से हटके पहचान सके? अब नहीं है तो आप लोग बाजू का गलती करते हैं, क्योंकि आप वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर होती. सो देयर इज अ कंसेप्चुअल डेफिनेशन, अ कंसेप्चुअल थिंग दैट would help you make sense of this. वो ये कि देखो ना, वर्ड जो स्टेगनेंट है, जिसके अंदर एक्शन महसूस नहीं हो रहा, हरकत महसूस नहीं हो रही, वो खुद एक्ट करता हुआ महसूस नहीं हो रहा, दैट इज अ नाउन. एडवाइस, नसीहत, रुका हुआ वर्ड, स्टेगनेंट वर्ड. एडवाइज, नसीहत करना, एक्शन महसूस हो रहा है इसके अंदर. सजेस्ट, तजवीज देना, राय देना, महसूस हो रहा है, हरकत इसके अंदर. सजेशन, तजवीज, राय, ठहरा हुआ वर्ड है, स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, बस ये नाउन है. दैट्स अ सिंपल थिंग. सो स्ट्रोलिंग इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस ऑन द ट्रैक अलोंग द लेक. अब ये सिंगुलर गिना जाएगा. इज ए रिफ्रेशिंग एक्ट, इज ए रिफ्रेशिंग एक्ट, उसको सिंगुलर गिना जाएगा. और इसी तरह से क्लॉज यानी ग्रामेटिकली ऑफ कोर्स क्लॉज की डेफिनेशन तो मैंने बताई, आपको सबको पता है कि क्या कहते हैं क्लॉज, लेकिन अब देखना, लेकिन वो बिहेव करेगी नाउन की तरह. व्हाट ही सेज, ये गौर से देखना, व्हाट ही सेज, ये गौर से देखना. अब ये पूरी क्या है? ये क्लॉज है. कोई कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ. व्हाट ही सेज, जो कुछ वो कहता है, ठीक है ना, पूरा जुमला है जो कुछ कहता है. अब ये क्लॉज कैसे बनेगी तो गौर करो. इसमें जो व्हाट का लफ्ज है ना, ये सब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है. थोड़ा डाइसेक्ट करो ना इसको, माइक्रो लेवल पे जाओ जरा, इसको माइक्रो कंपोनेंट में डिवाइड करो तो क्या बनेगा? व्हाट ही सेज, ये पूरे जुमले में व्हाट ही सेज, यानी रेफर तो स्ट्रेस किस पे है? व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज, जो कुछ वो कहता है, जो कुछ वो, क्या जुमला बोल रहे हैं, जो कुछ वो कहता है. साउंड देखें उर्दू में, बेशक आप ये ग्रामर की टर्म लगा लें जी, वो क्लॉज होगी. व्हाट ही सेज इज ए वाइट लाई, वो सफेद झूठ है. Because you are stressing the word what he says. You're writing the form of a clause, but you are using this as a subject. You're stressing on this one. तो ये है वो चीज जो आपको इस 4 स्टेप्स को ज़हन में रख के करनी है. मुझे एक दफा बता दीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर? मैं शुड आई प्रोसीड क्विकली? जरा बताना है जल्दी से. हाँ, 11 बज गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी नहीं खत्म हुआ. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. अच्छा, सेकेंड थिंग इज, एक और लिख लें. सम नाउन्स, जैसे कि नाउन्स हैं कुछ, जैसे कि सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये लिख लें. कुछ नाउन मैं बता रहा हूँ, कुछ, सारे नहीं. नाउन है जैसे सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, स्टेशनरी, मशीनरी, न्यूज, न्यूज खासतौर पे न्यूज, इसको तो प्लूरल ले लेते हैं. सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, न्यूज.
ठीक है ना, इस किस्म की चीजें जो है, ये जो है ना, दे ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चांटिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चांटिंग। अब ये सीनरी की बात हो रही है ना, तो सिंगुलर नाउन लेंगे। यस, ये कह सकते हो। यस, द वर्ड दैट डोंट हैव अ प्लूरल, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब पता क्या, जैसे अब ये कुछ वर्ड्स हैं ना, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि जिमनास्टिक्स हैं, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एस पे खत्म होने से लोग उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं। ये डिसेप्टिव वर्ड्स होते हैं, इनको कहते हैं डिसेप्टिव वर्ड्स। ये लगते प्लूरल हैं कि सिंगुलर कंसिडर होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मैंने बोले हैं ये स्पेसिफिक हैं जो सिंगुलर रहेंगे। इसी तरह से कुछ नाउन्स हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और ऑलवेज वो टेक प्लूरल होते हैं, जैसे कि स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ठीक है ना, समझ आ रही बात की। ये प्लूरल ही रहेंगे ऑलवेज, देयर ऑलवेज प्लूरल। गॉट इट? अच्छा जी, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद जो सेकंड थिंग, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज के ऊपर मैं जो जाऊंगा वो है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडिफायर्स। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? अच्छा, बिफोर आई टेल यू द मॉडिफायर्स, ये पहले जल्दी जल्दी पढ़ लेना कि नाउन्स एंड वर्ब्स मेक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अंग्रेजी में दो ही वर्ड्स हैं, नाउन एंड वर्ब्स। वो फिर बेसिक वर्ड्स ये हैं, नाउन एंड वर्ब्स। देन यू हैव एन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, बेसिकली जो कि डिस्क्राइब करते हैं, नाउन्स के बारे में बात करते हैं, वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो भी नाउन है, वर्ब्स हैं, उनके बारे में जो एडिशनल बात करेंगे ना, राइट। वन इज एडजेक्टिव, कॉल्ड एडजेक्टिव, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। अब इसको अगर हम मॉडिफायर को जरा रूट वर्ड देखें, मॉडिफाई, तो मॉडिफाई का क्या मतलब होगा जी? I told you in my class, most of the students are aware of this, कि मैं इस तरह से समझाता हूँ। modify, to give shape, to make it concrete. Why to give shape? Modify means उसको shape करना, to give it a shape, you know. Why to give it a shape? To make it concrete, to make it definite, to make it definite. मैं इस तरह से concept समझाता हूँ मिसाल के तौर पर, look at this one. मैं वही एग्जांपल यूज करूंगा जो मैंने क्लास के अंदर यूज की थी एक दफा। फॉर एग्जांपल कि आई से शू, इन ह्यूमन माइंड सेंसेस द पिक्चर। ये बात जरा गौर से सुननी है, समझना है इसको। अगर आप मॉडिफायर को समझना चाहते हो और मैं उससे कह रहा हूँ कि मॉडिफायर से वर्ड जो है वो मॉडिफाई से है। मॉडिफाई का मतलब टू गिव इट शेप। व्हाई टू गिव इट अ शेप? टू मेक इट डेफिनेट, मेक इट कंक्रीट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए एक बात जरा समझो। ह्यूमन माइंड सेंसेस द पिक्चर, दिस इज वेरी obvious. You don't know, you may not be aware of this, but actually human mind senses the picture. Let me explain it. Those who have never attended my classes, let me explain. Human mind senses the picture. If you close your eyes and if I utter a word, the picture would pop up in your head. At the moment you cannot see me, for example. You can't see me. But my tone, my voice, the way I utter and stress or have pause, that if you close your eyes,
that would be triggering a picture in your head. And if my picture is visible onto the screen, though it's a stagnant picture, static picture, but it would be, triggering some motions, some gestures in your head. Yes or no? किरण, आप लोग बैठे हो जो यहाँ के बैठे हो वो तो बता सकते. Yes or no? Yes. Picture आ जाती है के अंदर. Human mind senses the picture, but we are so conditioned to listen to the talks, the words, and we assume that we are understanding. But for actually human ears, जो इंसान का कान है, उसके लिए जो हम लफ्ज बोल रहे हैं वो सिर्फ साउंड है. वो सिर्फ साउंड है. और हर साउंड जो है वो एक पिक्चर के साथ एसोसिएटेड है और उसके साथ वो दिमाग में रजिस्टर हो चुकी है. माँ ने सिखाया मामा, तो आप बच्चे के लिए वो मामा का मतलब कुछ भी नहीं था. वो मामा का वर्ड कुछ भी नहीं था, वो साउंड थी. वो माँ के जब वो मामा लफ्ज बोल के सिखा रही थी बच्चे को, तो वो जो चेहरे के तासरात बना रही थी, जो स्माइल फेस पे दे रही थी, वो बच्चे के लिए एक खेल था, फन था. रेपिटेशन इतनी हुई माँ ने की मामा 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 की कि अल्टीमेटली बच्चे ने वो जो लफ्ज मामा था उसने उसको इमिटेट करना शुरू किया, मामा. और फिर कुदरत ने जो उसको तरीका सिखाया था कि वो जो भी चीज़ मांगता है उसके लिए वो क्राई करता है, रोता है कि मुझे चीज़ दे, और माँ सुन लेती है. अब उसमें थोड़ा सा चेंज आया, शिफ्ट आया, और वो ये हुआ कि अब उसने देखा कि जैसे मैं ये साउंड खुद बोलता हूँ, क्योंकि माँ ने डेफिनेटली जब सिखाना था तो मामा सिखाने के बाद उसने क्लैपिंग की, खुशी का इजहार किया, अप्रिशिएट किया. बच्चे को लगा कि दिस वर्ड इज ओके, दिस साउंड आई शुड अटर, मामा. उसको पता चला इस पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा. फिर उसने रोने के साथ ये भी लफ्ज ऐड करना शुरू किया, मामा, और मामा पे उसको चीजें मिलनी शुरू की. मामा ने फौरन रिस्पॉन्ड किया, चीज मिली. फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पापा, ये जो भी सिखाया गया. फिर माँ ने जूस वर्ड सिखाया, चिप, कोई भी वर्ड नए सिखाए जाते हैं. जैसे कि चिप्स, तो बच्चा चिप्स बोलता है, या जूस, बच्चा जूस बोलना शुरू कर देता है. दिस इज लिटिल फन बट आई एम टेलिंग यू, बट इट्स अ फैक्ट. Don't take it light. It's a very important point that I'm going to tell you. अच्छा, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हर वर्ड जो भी, या जो साउंड थी बेसिकली, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करके जब उसको रिपीट किया गया, वो आपके ज़हन में एज ए लफ्ज रजिस्टर हो गया. अब आप वो बेसिकली तो साउंड निकाल रहे हैं जिसको आप लफ्ज अब कहते हैं, और वो उसका जो मीनिंग है वो बेसिकली उससे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट वो ज़हन में बैठ गया. जितने एब्स्ट्रैक्ट है वो भी इसी तरह ही है, उससे रिलेटेड एग्जैक्ट. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई उससे रिलेटेड इवेंट, इमोशन, फीलिंग्स, कोई ना कोई उनके साथ अटैच है. Now you go to school and your teacher says A for apple and shows the apple pictured on the book. B for ball, C for cat, D for dog. उर्दू में अलिफ अनार, बे बकरी, वो सब ऐसे ही हैं, पिक्चर्स के जरिए सिखाए जाते हैं. Even today when you go to universities, colleges or universities, you have diagrams, you have visuals. They all associated with other things like gestures, emotions, feelings, environment. They are registered in your brain. ये बात याद रखिएगा. तो जब मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, जरा गौर से देखें. मैं जैसे शू कहूंगा, अगर आंखें बंद करें तो आपको शू नजर आएगा, लेकिन सबको डिफरेंट. अगर मैं सबसे पूछूं कौन सा शू नजर आया, somebody would say black, somebody would say red, somebody would say जी jogger, somebody would say sneakers, somebody would, कुछ भी जो शू आपने पहना है, लेना चाहते हो, किसी पे नजर है, वो नजर आएगा. That's for sure. Not one concrete picture. But if I say, for example, black shoe, अब स्कोप देखो कितना नैरो हो गया. अब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, कम से कम शू की जगह ब्लैक जरूर नजर आ गया. बेशक शू की शेप कुछ भी है, शेप डिफरेंट होगी अभी भी, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे आप इकट्ठे हो गए, ब्लैक शू. राइट. अगर मैं ये कह देता हूँ माई ब्लैक शू, तो और स्कोप नैरो हो गया, और ऑप्शंस खत्म हो गए, दे फिल्टर्ड आउट. राइट. ये सारे वर्ड जो है, माई ब्लैक शूज. अगर मैं कहता हूँ माई ब्लैक एक्सपेंसिव शू, ये मैंने शायद लफ्ज लिखा था पहले, माई ब्लैक एक्सपेंसिव शू. ये सारे के सारे वर्ड्स, they are describing the word called shoe, which is actually a noun. और ये जो वर्ड्स हैं, ये इसको डिस्क्राइब चुके कर रहे हैं, they're all adjectives. And these adjectives are basically giving this word shoe a shape, modifying it. That's why it's called modifier. Adjective. So one is adjective. Even अगर मैं ये लिख दूं, मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल
द शू, तो द भी एडजेक्टिव ही है, मॉडिफायर ही है। अगर मैं लिख दूं वन शू, तो भी ये वही है। बट अलग सी बात है कि ग्रामर, फॉर द सेक ऑफ ग्रामर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे जी ये एवेल्युएटिव एडजेक्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, दिस इज एन आर्टिकल, दिस इज अ क्वांटिफायर। दिस इज व्हाट यू कॉल ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर। Right? But principally, they all are talking about this one particular word, shoe, which is a noun. So any word which is talking about describing or saying something about the noun or pronoun for that matter is called adjective and is a modifier. Another one, for example, he walks. Chalta hai. Again, if you close your eyes, you will have a different picture in your mind. But if I say he walks slowly or briskly, right? They are talking or describing or telling something more about this word which is called a verb. इस वर्ड के बारे में बात करें इसको, तो ये इसको मॉडिफाई, इसकी कंक्रीट एक शक्ल, एक पिक्चर था कि सबके जेहन में आ रही है, वो बना के दिखा रहे हैं। ठीक है जी। These words which describe the verb, that's called adverb. Adverb का काम होता है कि वो verb को, adjective को और adverb itself को describe करे, and that is a modifier. So basically, adverb is another modifier. वो वर्ब को भी कर रहा है, जैसे वॉक स्लोली, एडजेक्टिव को भी करेगा, जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ स्लाइड के अंदर, और वर्ब को भी करेगा। स्लाइड में देख लेना, मैं स्लाइड में दिखा दूंगा इधर लिखने के बजाय। सो देयर आर टू मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब। अब जरा गौर से देखो, कम टू दिस, ये modify is a word, phrase, or clause that describes something or makes its meaning more specific. You know, a function as an adverb, modified function as an adjective or adverb. So having said this, अब ये वर्ड की शक्ल देख लें। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्टली आगे चलूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये एज ए वर्ड, ये एज ए फ्रेज, ये जो ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ ना, जो कुछ भी समझ लो, ये ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर है। मतलब है तो ये फ्रेज ए वेरी फास्ट, फ्रेज की डेफिनेशन आपको पता है, क्लॉज की डेफिनेशन पता है, वेरी फास्ट। बट ये नाउन के साथ लगा, इसको कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। शी सेट ऑन द ब्रूम, ये ऑन द ब्रूम जो ये सेट के को डिस्क्राइब कर रहा है, सेट कहाँ पर, बैठा कहाँ पर, तो आप बता रहे हैं ऑन द ब्रूम, तो अब ये एडवर्बियल फ्रेज होगा। यही एडवर्बियल फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन ऑन से शुरू हो रहा है, आप इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। इसी मैं इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर हो जाए। I most of the time ask my students कि what is this? वो बड़ी डिफरेंट बातें बताते हैं। मैं कहता हूँ नो, इट्स अ लेटर, इट्स अ लेटर, इट्स एन अल्फाबेट। कोई कहता है जी ये है, कोई ये सब्जेक्ट कहता है, कोई नाउन, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, सब गलत। इट्स अ लेटर, नथिंग एल्स। ठीक है जी, एन अल्फाबेट। नाउ दिस इज व्हाट, वो कहेंगे जी ये नाउन है, प्रोनाउन है। मैं कहता हूँ नो, इट्स अ वर्ड, बिकॉज नाउ इट हैज a meaning. It has a meaning. वर्ड की तरह बिहेव करे ना, ठीक है। इट इज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, सो कॉल्ड प्रोनाउन, राइट। ऑल्सो यूज्ड as a doer in the beginning of a sentence, so called a subject, the doer. Yes or no? अभी उसकी सारी हम डिफरेंट डायमेंशंस को जिक्र कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत कि वो जी फ्रेज है, वो उसको एडवर्बियल भी कह रहे हैं जी, वो प्रपोजिशन, तो भी प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे ये चीजें आएंगी। सो ये मॉडिफाइड क्लॉज की सूरत में, द थीफ दैट स्टोल द बैग, एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि एडजेक्टिव थीफ के बारे में बात करें तो पूरी की पूरी क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगी।
क्योंकि नाउन को जो भी बयान करेगा एडजेक्टिव होगा। ही केम व्हेन द मून अपीयर्ड, सो ये व्हेन द मून अपीयर्ड पूरे का पूरा जो सेंटेंस है, क्लॉज जो है वो केम के बारे में बात करें, इसको एडवर्बियल क्लॉज कह देंगे। सो ये वर्ड की शक्लें दिखा रहा हूँ मैं सारी। आई वुड बी लिटिल, उसे कह लो कि मैं यहाँ पर ज़्यादा रुकूंगा नहीं, डिटेल में नहीं जाऊँगा, ओनली बिकॉज कि ये चीज़ें आप में से बहुत ही पढ़ी, मैं ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर पर जोर नहीं देना चाह, मैं सीधे सीधे उन पॉइंट्स पे जाना चाह रहा हूँ जो कि बेसिकली आपको समझने हैं, ताकि आपको सेंटेंस के अंदर वो गलती को देख सकें। बट ऑब्वियसली बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। यू सी, ये वर्ड की थोड़ी सी एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल दे दी हैं ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वन, दी, ये सब एडजेक्टिव ही हैं, क्योंकि ये नाउन, शेल्फ, हाउस, वन, बुक के साथ लगे हुए हैं, राइट। अब ये जो वन है, ये अब यहाँ पर क्वांटिफायर है, यहाँ पर क्वांटिफायर है, यहाँ पर वो खुद नाउन है। उससे पहले जो लगा दी आर्टिकल, वो इंडेफिनिट आर्टिकल, और वो एज एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, वो एज एडजेक्टिव यहाँ पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो नाउन हाउस से पहले लगा हुआ है। स्मॉल एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, वो शेल्फ से पहले लगा, वो तो चलो समझ आ गया आपको, लेकिन इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज थे। तो अब सोचो कि आप ग्रामर की गलतियां कितनी करते हो, आर्टिकल सही नहीं प्लेस करते, जहाँ पर क्वांटिफायर लगाने वो नहीं लगाते, कहीं पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर लगाना वो नहीं लगाते। यू से ऑल आर एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव की मिसालें हैं। ऑल दीज आर different names according to grammar for the sake of grammar, if I say। ठीक है जी, समझ आ रही है जी? सना, किरण, जरा मुझे रिस्पॉन्ड करे बेटे। आमना, मजीद क्लैरिटी आ रही है? ओके, थैंक यू। ये एडजेक्टिवल फ्रेज आ गए। अब ये फ्रेजेस हैं। फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 वर्ड्स व्हिच डू नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो अब स्पेस इज ए नाउन, तो स्पेस को जो भी डिस्क्राइब करेगा वो पूरे का पूरा वो एडजेक्टिव है ना। तो अब ये किसकी शक्ल में? फ्रेज की शक्ल में है। एन एक्सट्रीमली स्मॉल space, ये an extremely small, every single word is connected. When some students comes to me, for example, some students, they come to me and they, I tell them these are the mistakes, these are the grammatical mistakes they have committed. तो बात बहस करते हैं, सर ऐसे ये इससे क्या होता है, ये छोटी सी गलती है। नहीं भाई, छोटी सी गलती से बहुत फर्क पड़ता है, छोटी सी गलती से बहुत फर्क पड़ता है। यही तो चीजें यहाँ पर चेक हो रही है कि आपकी कितनी सेंसिबिलिटी है, कैसे फर्क पड़ता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बुक, एक किताब आई होगी जहन में, जो कुछ मर्जी हो जाए आपके दिमाग में, एक किताब आई है। द मोमेंट आई एड फॉर एग्जाम्पल बुक्स, इट इज इम्पॉसिबल कि आपके जहन में एक किताब आई हो। किसी के जहन में 2, किसी के जहन में 4, किसी के जहन में 6, किसी के जहन में लाइब्रेरी। जस्ट एडिंग दिस सिंगल लेटर एस हैज मेड द ह्यूज डिफरेंस। इट हैज चेंज्ड द एंटायर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। यू सी, तो कैसे नहीं फर्क पड़ता? अक्सर स्टूडेंट छोटी छोटी चीजों पे बहस करते हैं ना, समझने के बजाय, लर्निंग के बजाय, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके ऊपर तवज्जो दें। यही चीजें चेक हो रही हैं। सेंटेंस करेक्शन इज ऑल अबाउट दिस। तो ये सारे जो है, माउस नाउन है, कहाँ पर है जी? माउस कॉर्नर में, इन द कॉर्नर, माउस के बारे में बता रहे हैं। तो ये फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, लेकिन चूंकि प्रपोजिशन इन से शुरू हो रहा है, इसलिए प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहेंगे उसको। ठीक है जी। ये इन्फिनिटिव, वांट टू रिमेंबर, इन्फिनिटिव है, राइट। लुकिंग ओवर हिज ग्लासेस, कर्नल जेम्स सेड दिस और दैट, व्हाटएवर। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज भी है, क्योंकि कर्नल जेम्स के साथ लगा। सो इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज आ गई। बॉयज, ये बॉयज के बारे में कहा है, दैट गैदर नियर द ग्राउंड। माउस, दैट लिव्स इन द कबर्ड। वन हू नोज नथिंग, ये नथिंग है यार, ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, द नथिंग नहीं है। वन हू नोज नथिंग, द नथिंग नहीं है, ये गलत है, इसको ठीक कर लें। यहाँ पे करेक्ट करवा रहा हूँ, आई स्टैंड करेक्टेड हियर। और माई फ्रेंड हु मेट मी इन द ऑफिस, ये सारे के सारे हु मेट मी इन ऑफिस, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये देखो, हु मेट मी इन ऑफिस, ये फ्रेंड के बारे में बता रहा है। सो एनीथिंग दैट टेल्स अबाउट द नाउन और नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। It could be in the form of a word, it could be in the form of a phrase, it could be in the form of the sentence called clause, उसकी शक्ल में होगा। तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने दे दी। इस किस्म के मिस्टेक्स लोग करते हैं। अब एडवर्ब पे आते हैं। एडवर्ब की भी वर्ड के तौर पर भी आएगा। He plays nicely, leave tomorrow, think carefully, ये सब एडवर्ब्स हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा, जब मैं प्रेसी करवा रहा होता हूँ, डेविड वॉज बोर्न ऑर्फन में मैंने ये लफ्ज समझाया था कि बोर्न ऑर्फन, डेविड वॉज बोर्न ऑर्फन, वो एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है कि वो बोर्न की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, वो एज ए नाउन नहीं यूज हो रहा है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। रिमेंबर दैट? आमीना, आप तो खैर मेरे बैच के हो, याद होगा आपको। He was born orphan. It's not as a noun, as an adverb being used, describing the state of the birth, जिस हालत पे हुआ है। ये हो गया जी
एडवर्ब जो है वो ये मैंने बता रहा था, एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और एडवर्ब एडवर्ब के साथ, राइट। सो एनीवेज ये एडवर्बियल फ्रेज आ गया जी। आर यू कनेक्टेड सना, आमिना? मुझे मेरी आवाज आ रही है, मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों के साथ? ओके, थैंक यू। आमिना, मैंने जब पहले पूछा है वो डेविड वाज बोर्न ऑर्फन, उस पर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आई थॉट शायद यू आर नॉट प्रेजेंट हियर इन द क्लास। डिड यू हियर दैट? ओके ओके ओके, याद है वैसे आपको? ओके, दैट्स गुड। रिस्पॉन्ड कर देते ना मुझे रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए था ना बेटे। अच्छा जी, एडवर्बियल फ्रेज ही सिट्स, अब सिट्स के बारे में बता रहे हैं, इन द कॉर्नर। ये पूरा फ्रेज है, ये किसका फ्रेज है? एडवर्ब है। क्यों है एडवर्बियल फ्रेज है? क्योंकि सिट्स के बारे में बात कर रहा है, मगर शुरू चूंकि प्रपोजिशन से हो रहा है, इसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहेंगे। I do not mean here you just get confused here in the grammar for the sake of grammar. It is important to tell you something about grammar for the sake of grammar also, ताकि आप कहीं सिर्फ कंसेप्चुअल पे भी ना रहे, थोड़ा बैलेंस हो जाए। वरना मेरा फोकस कंसेप्चुअल पे है, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर। बट जाहिर बात है, थोड़ा सा आप ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर पढ़ गए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो इसको हम कह देते हैं, तो हम अक्सर इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। बस आपने ये ज़हन में रखना है, एनीथिंग दैट डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। It could be in the form of a word or a phrase or as a clause. Similarly, anything that describes the verb is called adverb, maybe in the form of a single word or maybe in the form of a phrase or a clause. But it is an adverb because it's talking about the verb. So same cases here. So without further ado, I just move on. ये क्लॉज आ गई, ही प्लेज अंटिल द स्टार अपीयर्स, क्योंकि ये अंटिल द स्टार अपीयर्स पूरा जुमला किसके बारे में बात कर रहा है? प्लेस की बात कर रहा है, उसकी ड्यूरेशन बता रहा है। लीव इफ यू वांट टू लीव, स्पीक्स लाइक अ सीजनड पॉलिटिशियन स्पीक्स। ठीक है जी, तो ये सारी एग्जांपल्स उसकी होगी। अब हम आते हैं जी, जो मॉडिफायर आपको दिए जाएंगे, दो उसकी फॉर्म्स हैं, द डैंगलिंग मॉडिफायर एंड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर एंड द डैंगलिंग मॉडिफायर। तो अब मॉडिफायर के लफ्ज पे ही गौर कर लो, मिसप्लेस्ड के ऊपर। मिसप्लेस्ड, misplaced means wrongly placed somewhere. इसका मतलब क्या हुआ? It means कि जो sentence है that may have two nouns or two verbs, so जिस verb के साथ जो adverb होना चाहिए वो वहां पे ना हो, किसी और के साथ लगा हो, या जिस noun के साथ जो adjective होना चाहिए वो वहां पे ना हो, कहीं और हो। बस सिंपल सी बात है। misplaced का मतलब है कि wrongly placed। ठीक है जी। अब when we say misplaced, तो उसके लिए जरा एग्जाम्पल, यू सी, माई सिस्टर वॉकड इन एज आई वाज स्क्रबिंग द फ्लोर विद हर न्यू बेबी। अब आप लोग लिखते हैं, आप जब लिख देते हैं ना, अक्सर जब स्टूडेंट्स आते हैं टेस्ट सीरीज में भी, हमें जब टेस्ट देते हैं या असाइनमेंट्स चेक करवाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कभी आप खुद जरा तर्जुमा करके देखो, इसको ट्रांसलेट करके देखो, आप खुद हंसोगे इसके ऊपर, राइट। इसका तर्जुमा करो ना, माई सिस्टर वॉकड इन, ओके, मेरी बहन आई, जैसे अंदर आई घर में, जब मैं एज आई वॉज स्क्रबिंग द फ्लोर, मैं फर्श साफ कर रहा था, झाड़ पोंछ हो रही थी, किससे? विद हर न्यू बेबी, उसके बच्चे के साथ। अंदाजा करो तर्जुमा क्या बन गया। द मोमेंट जो रॉन्गली प्लेस्ड विद हर न्यू बेबी, विद हर न्यू बेबी, जब बहन आई है तो वो अपने बच्चे के साथ आएगी, बच्चे के साथ होना उसको उधर होना चाहिए, विद हर न्यू बेबी को उधर होना चाहिए। माई सिस्टर वॉकड इन विद हर न्यू बेबी होना चाहिए ना। उस वक्त आप बता रहे हैं, वो टाइम बता रहे हैं कि उस वक्त मैं स्क्रबिंग द फ्लोर कर रहा था। अब आप सोचो, छोटे मोटे वर्ड आगे पीछे करते हो, मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये मॉडिफायर की बात बता रहा हूँ, रॉन्गली प्लेस्ड, एंड देन स्टूडेंट्स आर्ग्यू विद अस, सर ये कहाँ गलत है, छोटी सी गलती है, इतनी गलत हो गई। अभी ये पिछले दिनों टेस्ट सीरीज हो रही थी, तो एक स्टूडेंट की प्रेसी के अंदर, अब गलतियां, मैं, हमारा काम तो गलती है ना बताना, कि ठीक करो बेटा, ये गलती है, इसको ठीक करो, और इसका ठीक, उसको वे फॉरवर्ड बताया जाए, सोल्यूशन बताया। वो कहते हैं गलती बताई ना, वो तो सारे ठीक करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा आपको गलत करके, और आपको ठीक करके आपको क्या मिल सकता है जबकि आप गलत हैं? कॉमन सेंस ना भाई। मुझे आपके पास इधर होके तो नहीं दिखाना ना, आपका असल मकसद तो सीएसएस है। अगर वहां पर आप ना हुए और हम यहाँ पर आपको खुश कर दे, टिक करके, ओके जी, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, गो अहेड, मुझे बताएं, मुझे आपको नंबर कम देके क्या मिलेगा, और आपको मुझे नंबर ज्यादा देकर आपको क्या मिलेगा अगर आप गलत हैं? आपका नुकसान होगा। बट दे आर्ग्यू, सो व्हाट कैन वी से। एनीवेज, द नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये जो था, ये एडवर्ब की एग्जांपल थी। वॉक इन के साथ होना चाहिए था विद हर, वॉक इन विद हर।
ठीक है ना, नाउन के साथ जाके लगा हुआ, स्क्रबिंग को एक्सप्लेन करा, स्क्रबिंग को। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव की शक्ल में, वन मॉर्निंग आई शॉट एन एलिफेंट इन माय पजामास। अब अगर तर्जुमा करेंगे तो पता चलेगा कि ये आपको हंसी आती है या नहीं आती। वन मॉर्निंग कॉमा व्हाइल आई एम इन माय पजामास आई शॉट एन एलिफेंट। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस। डेंगलिंग मॉडिफायर तो मिसप्लेस की, अगर आपने कोई और एग्जांपल लिखनी है तो एक लिख लें, एक आध एग्जांपल लिख लें कि काफी है। ये एक और बच्ची का नाम नजर आ रहा है, तंजील नजीब या जो सना किरण, यू प्लीज लेट मी नो बेटा। ठीक है, इट्स फाइन, ओके 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 ओके, आई मूव ऑन, आई मूव ऑन। डेंगलिंग, डेंगल करना, अनअटैच्ड। डेंगल का मतलब हैंगिंग, हवा में, मोलक, इट्स नॉट मेकिंग क्लियर कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट। वेटिंग फॉर द ट्रेन, इधर नहीं लिखा हुआ, लिख लो, वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट। और करें क्या होगा? वेटिंग फॉर द ट्रेन कौन कर रहा था? ब्रिक फेल ऑन माई फुट, ट्रेन पे वेट कर रहे थे, कौन कर रहा था? और उसके करने से, वेट करने से, ब्रिक का आपके पांव पर गिरने से क्या फर्क है? वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको while I was waiting for the train, मैं जब वेट कर रहा था, a brick fell on my foot, तो समझ आती है कि मैं ट्रेन का वेट कर रहा था और मेरे पांव पे ईंट गिर गई। While I was waiting for the train, a brick fell on my foot. You see, that's called dangling. Dangle का मतलब हवा में मोलक, अंडा। जिसको मॉडिफाई करना है, जिस वर्ड को, ठीक है, जिस भी फ्रेजेस जो हैं वो वहां पर होने चाहिए। मॉडिफाइड फ्रेजेस जो हैं मस्ट हैव अ वर्ड टू मॉडिफाई, ये अकेला नहीं हो सकता। ये देखिए, having finished the assignment, the TV was turned on. Who finished the assignment and who turned on the TV? That's the point. It is clear, creating an ambiguity. Having finished the assignment, the TV, TV तो एक ही ना होना ना, TV खुद तो नहीं ऑन हो सकता। Somebody did that, ना? So who did that? Having finished the assignment, he turned on the TV. Having finished the assignment, I turned on the TV. Having finished the assignment, you turned on. Having finished the assignment, she turned on. यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है, लिहाजा कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते, बट रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट। लेकिन यहां पर देखो, यानी सेंस करना, ये ऐसे नहीं लगा देना, ये ऐसे नहीं लगा देना, ही ऐसे लग गया। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल दी, वेटिंग फॉर द ट्रेन, ब्रिक फेल ऑन माय फुट, माय उधर इंडिकेशन थी, पोजेसिव प्रोनाउन मौजूद था, माय, तो फिर माय मेरे फुट पे गिरी ईंट, तो फिर मैं ही वेट कर रहा था ना, तो रेलेवेंटली आई प्लेस किया गया, व्हाइल आई वाज वेटिंग। ठीक है ना, ऐसे नहीं लगा देना, उसके अंदर सेंस करना है। अगर कोई इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन जरूर होगी, जैसे कि उस पर पिछले में थी, ये टीवी में कोई इंडिकेशन सॉरी नहीं है, अगर नहीं है तो फिर तो आप कोई भी लगा सकते हो। लेकिन अगर इंडिकेशन है, जैसे कि अब ये नेक्स्ट में आ रही है, ये देखो, ये किधर गया, ये नहीं, इधर नहीं, किधर गया, पीछे चला गया, सॉरी, हाँ यही, हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, ये तो हो गया, ही टर्न्ड ऑन, इसमें इंडिकेशन नहीं थी, लगा दी आपने। ये द एक्सपेरिमेंट वाज फेलियर नॉट हैविंग स्टडीड द लैब इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो यहां पर कोई ना कोई पर्सन या पर्संस होंगे। अब जो क्लोजली रिलेटेड है वो कौन सा हो सकता है? जस्ट कैस, पॉसिबली साइंटिस्ट की बात तो नहीं हो रही, वेरी बट ग्रुप ऑफ पीपल, नॉर्मली स्टूडेंट्स ही होंगे, तो क्लास या स्टूडेंट्स। द क्लास फेल्ड टू स्टडी द लैब इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फेल्ड द एक्सपेरिमेंट। अब जब आप कहते हैं द एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर नॉट हैविंग स्टडीड द लैब इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो किसने वो नहीं पढ़ी थी इंस्ट्रक्शंस? Somebody was there who failed. Somebody was there who did not study the instruction. Somebody failed in the experiment. उसको मेंशन करो। तो अब यहाँ पर बेतुका किस्म का कोई नहीं लगा देना आपने नाउन, आपने सोच समझ के लगाना कि पॉसिबल, यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है तो कौन हो सकता है? दैट पॉसिबली कुड बी द स्टूडेंट्स, मे बी द क्लास जो आप एज ए कलेक्टिव यूज कर रहे हो। ठीक है जी, तो मॉडिफायर्स भी क्लियर हो गए आपको? हेलो, क्लियर हो गए बेटे? अच्छा, आखिरी आज के सेशन के अंदर आखिरी जो ग्रामर का पोर्शन है, दैट इज अबाउट पैरालिज्म। आखिरी जो पोर्शन मैं करने जा रहा हूं
that is about parallelism. वो आपको पता है सबको, ये पहले तो स्लाइड बता दो। स्लाइड नजर आ रही है? कैन यू सी द स्लाइड? जी बेटे, नजर आ रही है स्लाइड? ओके, थैंक यू। एक मेरा ख्याल है कि जब ये क्लास आपकी खत्म होती है तो आपको पता है कि एलएमएस पे मेरा ख्याल है टेस्ट अपलोड हो जाते हैं फॉर प्रैक्टिस टेस्ट। यू नो दैट आपकी जितनी क्लासेस हुई हैं स्क्रीनिंग की, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ये प्रैक्टिस के लिए टेस्ट अवेलेबल होंगे। मेरा नॉट श्योर अबाउट अदर सब्जेक्ट, बट मेरी क्लास के लिए लास्ट टाइम जो स्क्रीनिंग हो रही थी, कुछ एक्सरसाइजेज एलएमएस पे दे देते थे और रात को 1 बजे 2 बजे या दूसरे दिन सुबह स्टूडेंट्स कर लेते थे। आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। मेरी कोऑर्डिनेटर अगर इधर हैं, मुझे सुन रही हैं, मुजाहिद आपके साथ हैं? इफ समवन इज हियर, अबीर है मेरे ख्याल मेरे साथ होती है। जी सर, मैं हूँ मारिया। मारिया जी बेटे, आप मुझे बताओ, इनकी होती है ना एक्सरसाइज वगैरह अपलोड? सर मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैं मैम अबीर से पूछ के कंफर्म कर सकती हूँ। जी बेटे जरा करना, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जितनी भी मैंने स्क्रीनिंग्स ली है ना, तो वो रात को एक्सरसाइज करते थे। अब का मुझे पता नहीं है। एलएमएस पे होनी चाहिए ताकि ये बच्चे प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लिया करें। वो 50 पता नहीं 60 सेंटेंसेस मिल जाते थे। मैंने तो पूरे बना के दिए हुए थे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए। अब मुझे नहीं पता आज की डेट में, तो जरा इसको कंफर्म करके अगर हुआ तो इनको बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को। फिर मैं करती हूँ। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, पैरेललिज्म, पैरेलल स्ट्रक्चर, यू मे कॉल इट पैरेलल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, व्हाटसोएवर। होता क्या है? देखो, इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है, शायद आगे स्लाइड पर लिखी हो, आई डोंट नो, मैं एक मिनट देख लूँ। अगर ना लिखी हो तो मेरी जो डेफिनेशन होगी नहीं होगी। राइट द डेफिनेशन, मैंने शायद लिखवाई भी थी, बट इफ यू कैन राइट, when a sentence contains many ideas, maybe two or more, when a sentence contains many ideas, bracket में बेशक लिख लो 2 or more, which are similar in nature, they must be presented in parallel grammatical form. ये डेफिनेशन है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा आइडियाज बयान करने जा रहे हो, डिफरेंट आइडियाज। अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा। वो इसेंस वाइज एक है, नेचर वाइज एक है, उनकी जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होगी वो कैसे होगी, ये सारी अभी दिखाने जा रहा हूं। वो मस्ट बी सिमिलर। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव फाउंड इज दे कमिट दीज काइंड ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर के मिस्टेक्स करते हैं। As I've said, your mind is not conditioned to think in English. It does not think spontaneous thought in English. As for example, I'm speaking to you, I don't have to think in Urdu. All the ideas automatically pop up into my head. They are, subconsciously constructed in my head. They pop up, they constructed, organized, and then finally I utter my mouth. They come out of my mouth. Because my mind is tuned, conditioned. I've been reading, I've been speaking for a long time. Mind is trained. Your mind is not trained, rather has not been trained in such a manner, in such a way. Your mind is tuned or conditioned to think first of all in Urdu, right? Then look at the last word of the sentence, maybe in your mind, and then think about the formula. When think about the formula, then place the formula. And in between them, what happens? वो मैंने आपको पहले बता दिया कि माइंड आपको मल्टीपल टास्किंग की तरफ लगा देगा। डेफिनेशन, सब्जेक्ट, ये होता है, वो होता है, वो। So that is why some people just remain busy, or they get stuck only in thinking about the right construction. They get stuck in their head, keep thinking about the right construction.
the right words to be placed. And what happens? They do not. They do not. They wrongly place every single word most of the time. You know, in search of placing the right word, they place wrong words. They correct the one part of the sentence and commit a mistake in another part of the sentence. This is what we have witnessed. So इसलिए ये बड़ी जरूरी चीजें जो आपको समझनी है. मैं इसलिए स्टूडेंट्स को एक तरीका सिखाता हूं. मैं कहता हूं शुरू में कभी भी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेटेड सेंटेंसेस मत लिखो. छोटा सेंटेंस लिखो. हमारे यहाँ तो हर स्टूडेंट को ये साबित करना है ना कि मैं पढ़ा लिखा हूं. ये गलती अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं. सीखने की जुस्तजू नहीं है. सीखें, छोटा सेंटेंस लिखें, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे. आपकी स्किल में बेहतरी आएगी. माइक्रो मैनेजमेंट हो सकेगी माइक्रो लेवल पे जाकर. आई प्ले क्रिकेट में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. छोटा सेंटेंस लिखें, लेकिन ठीक लिखें. Rather than you write a long and intricate sentence and then you commit a lot of mistakes. I call it blunders also sometimes. Because you become so unconscious, you become so unwise, you appear unwise. अब ये देखो जो modifiers बताएं इसमें क्या हो रहा था. When you write, you commit the mistake of a modifier, of a misplaced modifier, तो क्या हो रहा है? You appear unwise, you appear funny. The sentence seems to be ridiculous one. ठीक है कि नहीं? तो आपने सीखना है. I play cricket लिखें. I play cricket and I also play tennis. फिर ऐसा एक और सेंटेंस ऐड कर लें. I play cricket and I also play tennis. एक से दो हो गए कि नहीं हो गए? Yes or no? I play cricket and I play tennis. Okay. I like reading, but I also love music. Playing music. Simple and understandable, na? Yes. I like reading, but I also like, playing music. फिर ऐड कर लें. तो कितना मुश्किल है? आसान है. आसान होता जाएगा. लेकिन नहीं, पहले ही लंबा सेंटेंस बनाना है. लंबा चौड़ा फिलोसफर वाला तो खुद भी कोई फायदा नहीं होता. तो एफपीएससी ने तो पकड़ना ना. उससे तो देखना ग्रामर कितनी ठीक है बच्चे की. ये मुझे वोकैबुलरी उसमें पेपर के अंदर ठोंस के नहीं बताए. मुझे बताए इसको उसका एग्जैक्ट इस्तेमाल आता है. मैंने क्लास में कहता हूँ डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वर्ड्स. नेवर गेट ऑब्सेस्ड विद वर्ड्स. प्रेस इज नॉट द टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी. जैसे प्रेस में इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं. इट इज द राइट use, right choice and right combination of words. Press is all about using the right word. अगर आप try word लगाते हो और वो contextually सही है, it is befitting to the context, तो वो word ठीक है. बजाय इसके कि आप endeavor लगाएं, उसके spelling भी गलत हो और वो contextually भी ठीक ना हो. ठीक है जी. आप ruin लगाएं अगर वो contextually ठीक है, या डिस्ट्रॉय लगाएं वो कंटेक्चुअली ठीक है. बजाय उसके कि आप जी मैंने डेवस्टेशन या कैटास्ट्रॉफी लगाना और ना नाउन और वर्ब की पहचान हो और लगा दें ये शो करने के लिए मेरे पास वोकैबुलरी, तो आपको तो कोई फायदा नहीं होगा. तो बेटे ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चेक होती हैं. सो ये पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर भी यही चीज देखी जाएगी. सो व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स मेनी आइडिया, टू और मोर, मैंने कहा था ब्रैकेट में लिख लें, व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ पैरेलल ग्रामेटिकल फॉर्म. जैसे ये एग्जांपल देखिए. कैली हैड टू आयरन, डू द वॉशिंग एंड शॉपिंग. अब खुद देख लो कैसा रिदम बन रहा है. रिदम बन रहा है. इट अपीयर्स क्लंकी. कैली हैड टू आयरन, ये देखो ना, हैड टू आयरन, आयरन वर्ब, डू द वॉशिंग जेरेड, ये जेरेड की शक्ल में आ गया, एंड शॉपिंग. इसी तरह ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स. अब रिक्वायर्स क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन नाउन की शक्ल में है, पेशेंस नाउन की शक्ल में, लेकिन आगे क्या आ रहा है? टू हैव ए गुड आईसाइट, इन्फिनिटिव की शक्ल में लगा रहे हो. टू हैव. इसी तरह अली प्रेफर्स जीन्स, जीन्स नाउन है. टू वेयरिंग, वेयरिंग जेरेंड है. वेयरिंग सूट, सूट नाउन से पहले वेयरिंग बता रहे हो, एक्ट बता रहे हो. तो ये गलत है, अनरिदमिक, बट इट इज द करेक्ट वन. कैली हैड टू डू द आयरनिंग, वॉशिंग, शॉपिंग बिफोर हर पेरेंट्स अराइव. रिदमिक. यस यस, यही बनेगा. गुड 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 सना. ड्राइविंग कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, पेशेंस एंड गुड आईसाइट. तीनों नाउन आ गए. Ali prefers wearing jeans to wearing a suit. Right? That's the correct version. अच्छा, अब ये तो होगी सिंपल एग्जांपल. अब आगे देखते हैं. पहले तो ये देख लो, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हाँ, क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, बट चले बता देता हूँ कि आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर नाउन है तो नाउन्स के साथ नाउन्स होंगे, वर्ब के साथ वर्ब्स होंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज है प्रपोजिशनल फ्रेज होंगे, एडवर्बियल फ्रेज है तो एडवर्बियल फ्रेज होंगे. जो भी चीज होगी एक जैसी होगी अगर आइडियाज उसमें सिमिलर इन नेचर हैं तब. यानी जब आपने सेंटेंस को चेक करना है तो पहले ये देखना है
क्या इसमें आइडियाज 2 से ज्यादा हैं? पहला स्टेप नंबर 1, check there are 2 or more ideas, number 1. Number 2, then see whether they are similar in nature, in a sense. Step number 2, this. Then if they are similar, then step number 3, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाए. Step number 3, whether they are presented in a parallel grammatical form or they've got different grammatical form. Is the sentence rhythmic or clunky, awkward, weird किस्म का? अब ये लिटमस टेस्ट है, ये आपकी लिटमस टेस्ट है, ये फॉर्मूला इज अ लिटमस टेस्ट, जिसे आप चेक करें, पहले चेक करें, सेंस करें, अगर वो ना हो, उस सेंस के मुताबिक उसमें फ्लॉ हो, फिर उसको ठीक करें. डोंट जंप ऑन टू फिक्सिंग द एरर फर्स्ट. That is the reason what we have seen is the students, before making sense of the questions, they try to write an answer. And then they repent, oh हो जी गलत आंसर हो गया, oh हो मुझे तो सवाल समझ नहीं आया, मैं तो ये कर गया, मैं वो कर गया. ये ऐसे ही है कि जैसे आप गुस्से में कोई एक्ट करते हैं और बाद देखे, oh हो मुझे गुस्सा बड़ा आ गया था. तो गुस्सा आपको आया था ना, आपको कंट्रोल नहीं आपका करना, आपका आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं, आपका गुस्सा आपका मालिक है और आप उसके स्लेव हैं. आप मालिक हैं, गुस्सा आपकी इमोशन है, उसको कंट्रोल करें, खेलें उससे पॉजिटिवली. ठीक है ना? इसी तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने से या समझने से किसी ने रोका है? स्ट्रेस आपके ऊपर तारी हो रहा है, स्ट्रेस आपका ऊपर मालिक है, मास्टर है. यू कंट्रोल योर स्ट्रेस, कंट्रोल योर नर्व्स, पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, ईच एंड एवरी डिटेल इन द क्वेश्चन, सेंस दैट एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दैट. तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है. ये इसलिए फॉर्मूले दिए गए, ये खाली पढ़ने और स्लाइडें रखने के लिए नहीं है. यू रीड देम एंड सेंस देम. ओके, so then what happens, ये this is the definition, where होगी, where parallel construction is commonly used in sentences, ये मैंने already have explained it. ठीक है जी. ये parallel structure का क्या मतलब है? A rhythm create करेगा, sentence equal लगेगा, I'm moving forward. और अगर कब parallel नहीं होगा तो वो clunky किस्म का लगेगा, awkward किस्म का लगेगा. I've already talked about all these things, but these are the slides ताकि आपके पास record में आ जाए. ठीक है जी. पैरेललिज्म क्रिएट कैसे होगा? दिस इज द वे, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. आपको उसको चेक करना है, वो चेक करने का तरीका मैंने जनरली बता दिया. लेट मी गो टू द एग्जांपल्स फर्स्ट. वर्ड लेवल पे नाउन का शुड बी ग्रुप विद नाउन, एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव, वर्ब शुड बी वर्ब. अच्छा, वर्ब की अगर एक फॉर्म लगी है तो वही फॉर्म लगी होगी. फर्स्ट है तो सारी फर्स्ट होगी, सेकंड है तो सेकंड होगी, जेरेंड है तो जेरेंड होगा. जैसे अभी आपने किया, केली हैड टू डू आयरनिंग, द आयरनिंग, वॉशिंग एंड शॉपिंग. ठीक है. सो ये देखें एक और एग्जांपल. द कंपनी इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज फ्रेंडली, ओके, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस. आगे गौर से देखो, चेंज होता नजर आएगा. एंड इज गोइंग टू अराइव. ये तो तहम्मुल से, ठहर के, समझ के पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, वरना तो आप तेजी में चीजें लिख जाते. अगर कैंडिडेट की बात हो रही है, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि फ्रेंडली हो, ये उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, एडजेक्टिव्स. ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस, तो ये देखो ना, एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, नाउन की शक्ल फॉर्म में आ रही है. एंड इज गोइंग टू कैसे आ सकता है? तो गलत हो गया ना. फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस एंड पंक्चुअल. ठीक है जी. इसी तरह से किसी भी इन्फिनेटिव को पैरेलल, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं. जस्ट आई वांट टू शो यू सम एग्जांपल्स सो दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. ये बातें मैं जुबानी कर चुका हूँ उर्दू में, रिटन इन इंग्लिश जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड. ओके, ये देखें. द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप लर्नड. अब गौर से देखना, पार्टिसिपेंट इन द वर्कशॉप लर्नड. अब क्या क्या सीखा? द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप, पहले तर्जुमा किया करो, पढ़ा करो, सेंस किया करो. वर्कशॉप लर्नड, क्या लर्न किया? हाउ टू. अब टू लग गया ना, टू के बाद सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. हाउ के बाद टू जब लगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज दे वुड बिहेव लाइक एन इन्फिनेटिव. टू कम्युनिकेट, टू नेगोशिएट. ठीक है. तो टू क्या होना चाहिए? वर्किंग होना चाहिए, टू वर्क होना चाहिए. गलत हो गया ना इसका मतलब? हाँ जी, यस. हाउ टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड वर्क कोलैबोरेटिवली भी होना चाहिए, वर्किंग नहीं होना चाहिए. ये देखो इसका सॉल्यूशन, ये is the solution. The participants in the workshop learned how to communicate, negotiate and work collaboratively. देखो तेजी से बोलते हुए, नहीं टू नहीं लगाना, टू लग चुका है. हाउ टू लग चुका है एक दफा, बार बार टू नहीं लगाना. हाउ टू कम्युनिकेट, कॉमा लग रहा है ना. सीरीज ऑफ, जब सीरीज आ रही होती है नाउन्स की या कोई भी लिस्ट आ रही होती है, उसमें कॉमर्स लग रहा है ना, दैट्स ऑल. उसमें बार बार हर कैसा टू नहीं लगाना. ठीक है जी. ये भी बात मैं कर चुका हूँ. I've already said this. I'm not going into the detail. I'm just going to show you more examples for this. ये देखें. Initial trials showed. अब गौर से पहले सेंटेंस देखें. Initial trials showed that exposure to the chemical caused.
अब ये कॉज से आगे बात शुरू हो जाएगी। इनिशियल ट्रायल्स showed that exposure to chemical caused, अब ये caused क्या क्या है वो सीरीज बताने जा रहा है और वो नाउन फ्रेज की शक्ल में। मेमोरी प्रॉब्लम्स एक पूरा नाउन हो गया फ्रेज, इंटरमिटेंट डिजीनेस दूसरा हो गया, लेकिन आगे गौर करो, एंड डेटर्स स्लीप, डेटर्स, डेटर्स तो वर्ब है, डेटर्स तो वर्ब है। मैं मुजाहिद बताता हूँ अभी आपको, 2 मिनट दे दें मुझे, 2 मिनट दे दें, ऐसे एक दो एग्जाम्पल दिखा, ठीक है, बस 2 मिनट देना, ठीक है जी। अब ये डेटर्स वर्ब है, इफ यू केयरफुली सी दिस देन यू वुड बी एबल टू डिटेक्ट और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये होना चाहिए। Initial trials show that exposure to the chemical caused memory problems, intermittent dizziness and insomnia. You know, noun form में आ गया, ठीक हो गया जी। आई होप यू गॉट अ बेटर आइडिया, काफी हद तक ठीक है मेरा ख्याल है, काफी हद तक लेक्चर, अब 3 चीजें आज हो गई ग्रामर की, कल फिर नहीं करेंगे। हमने अभी मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के भी मॉडल वर्ब्स भी कुछ बताऊंगा, कुछ इसके बाद रिडंडेंसी प्रोनाउन, छोटी छोटी चीजें बता के प्रोनाउन रेफरेंस एरर, फिर मैं कुछ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कुछ चीजें, उसके कुछ रूल्स, कुछ नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ पॉइंट्स को उनके बताऊंगा, वो के बताए हुए, लेकिन डेफिनेटली इधर इस सीरीज के अंदर तो मैंने बताना ही है, ठीक है। कुछ ग्रामर की और चीजें बता देंगे आपको, ठीक है। सम कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स मुझे आपको याद कराना, कम सम ऑफ द कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, देन यू वर्क ऑन दैट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। नहीं अभी ग्रामर की मेरे ख्याल है एक क्लास तो कंफर्म है, उसके बाद फिर कॉम्प्रीहेंशन की है, और उसी के साथ किसी के साथ वोकैबुलरी ऐड हो जाएगी, वरना शायद करनी पड़ेगी 2 से 3 तो आगे जल्द में रखे ना, कम से कम 3 तक, समटाइम 3 समटाइम 4 होती हैं, 4 क्लासेस होती हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, आप इसको बंद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस। Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Okay, students, that's about it for today. और कल मिलते हैं हम इंशाल्लाह सही क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और आराम करें, सो जाएं, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज एवरीवन।